Hello, good afternoon, everyone. Let me first introduce myself. My name is Devangshu Pandit. Am I audible? Okay, good afternoon, Teki Kumari and everyone. Am I audible? Any person? Okay, so my name is Devangshu Pandit. I am software engineer at CSIR, Central Institute of Mining and Fuel Research. So you are joining the IT and IoT based training course. So most welcome everyone. So today my topic is do and don't while using internet. So this is the very small topic and but very important, and we must follow the some rules and some protocols. Please continue and take this course and the last. Okay, so let me start. Okay, so this is the course name IT and IoT based training course, that is based on the Jigyasa program, Government of India, that is organized by the CSIR, Central Institute of Mining and Fuel Research, Dhanbad, Jharkhand, and it is sponsored by the Ministry of Electronics and Information Technology, MEIT, Government of India. Okay, so this course is for the class 8 to 10, for the diploma students, for the ITI students, BCA undergraduate, or of CS or IT or any undergraduate level students. So today 15 to 2021 is my topic that will cover the name of the topic and name of the sub course, that is do and don't while using internet. Okay, so this is you think very little course, but this is very important, and we can say that that is a part of our life, because every day we use internet, or we use social networking sites, or whatever. So for each person, a little children, a children to aged person, that is very important topic. So I will cover this topic by today. Okay, so thanks for all the students. मैंने पिछले कई क्लासेस से देखा है कि हम लोगों ने कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कि वो डेडिकेटेड हैं, और उसके लिए थैंक यू. ठीक है, और आप सभी का वेलकम है इस आईटी एंड आईओटी बेस्ड ट्रेनिंग कोर्स में. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक जो है आप लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में देखेंगे, राइट. सो टॉपिक इज दैट इंटरनेट डज एंड डजंट. सो क्या हम लोगों को करना चाहिए, व्हाट प्रिकॉशंस वी शुड यूज, और व्हाट preventions, or what. So be smart on the internet. Okay, because today's scenario we can see that there are millions of hackers are there. There are millions of cyber crimes are there. We will see the different reports are there. Okay, so finally we can say that be smart on the internet. Why? So we will see. So till now we have learned about 7 topics or 7 sub courses in this training course. Today few students are new, or few are joined. Okay, so I will. Voice is clear or not? Any person say? Okay, so can you see the screen? Okay, so
the course details are in this slide. You can see there are 11 different courses in which you have done, I think, 7 courses. That is web development, you have done basic, IoT based home automation, introduction to the programming fundamentals, introduction to the animation, introduction of animation, basic of C programming, how to secure your email and social networking accounts, basic of networking and applications. So all the above things you have done in these topics, and today we will see the internet do and doesn't. So this is also an important topic. I will cover this topic today. So first of all, internet safety is mandatory. Why internet safety? We will see some charts or some data in this presentation or in this class. Why internet safety? Because internet is everything today. Today everything is connected with internet. If you are using a mobile phone, don't think this is my personal mobile phone. It is connected to the wave, right? So next, you can see this. This is according to a data. This is a chart that depicts the number of internet users in India from 2005 to 2020 with the forecast by the 2025. That means क्या है, 2015 से लेकर 2020 तक का डेटा है, जिसमें ये दिखाया गया है कि नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स कितने हैं इन द मिलियन. ठीक है, मिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है, 10 लाख. दैट मीन्स अगर हम लोग देखें कि 2015 में 302.36 मिलियन इंटरनेट यूजर्स था. ठीक है, जो कि 2020 तक अभी है 696.77 मिलियन. ठीक है, ग्रोथ रेट क्या है इसका, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है. दैट इज़ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. और अकॉर्डिंग टू दिस डेटा एक प्रिडिक्शन लगाया गया है, एक फोरकास्ट किया गया है, जिसमें से 2025 तक का ये जो है ये 1000 से ये पार 1000 मिलियन से ये पार हो चुका है, पार हो जाएगा, सॉरी, राइट. सो अकॉर्डिंग टू ए चार्ट ये नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स है. ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें कि इंटरनेट इन इंडिया बाय 2020, ये भी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक कवर किया है इस टॉपिक को, कि किस किस फील्ड में और क्या क्या चीज़ में 2020 तक का जो है इंटरनेट में क्या होने वाला था, क्या हुआ है, उसका एक डेटा है. ठीक है, तो 730 मिलियन इंटरनेट यूजर्स 2020 में 730 मिलियन इंटरनेट यूजर्स है, जिसमें से 75 न्यू यूजर्स फ्रॉम द रूरल एरिया. ग्रामीण क्षेत्र में 75% जो है ये हुआ है, और 75% न्यू यूजर्स टू कंज्यूम डेटा इन वर्नाकुलर लैंग्वेज. दैट मीन्स क्या है कि 75% जो यूज़र जो है डाटा कंज्यूम कर रहा है किसमें, अपनी मातृभाषा में, उसमें यूज़ कर रहे हैं. CAGR मोबाइल वीडियो कंटेंट ग्रोथ, इसमें क्या है कि एक मोबाइल का जो वीडियो कंटेंट है ये 83% ग्रोथ हो रहा है. CAGR क्या है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब एक ग्रोथ रेट निकाला गया है, तो वो उस डेटा के अकॉर्डिंग 83% ग्रोथ रेट है. 175 मिलियन ऑनलाइन शॉपर्स. ठीक है, 175 मिलियन जो है ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए इंटरनेट का यूज़ हो रहा है अभी तक. अभी कुछ ज़्यादा ही है, ये 1 साल पहले का तक का ये है. ठीक है, 70% ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स विल बी वाया मोबाइल. मोबाइल का ट्रांजेक्शन्स जो है वो 70% ई कॉमर्स साइट से हो रहा है. हम लोग कुछ भी परचेज कर रहे हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ठीक है, और भी कोई भी ई कॉमर्स साइट से, तो मैक्सिमम सब मोबाइल से करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू ये जो डेटा है कुछ निकाला गया है, जिसमें से 70% जो है ई कॉमर्स मोबाइल का ट्रांजेक्शन्स के थ्रू हो रहा है. एंड 50% ट्रेवल ट्रांजेक्शन्स विल बी ऑनलाइन. ठीक है, अभी तो कुछ ज़्यादा ही है, अबाउट 55-56% ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, ट्रेवल ट्रांजेक्शन्स हो रही है. ठीक है, तो सारा का सारा चीज़ इंटरनेट से जुड़ा हुआ है. दैट्स वाई वी नीड टू सिक्योर आवर नेटवर्क और आवर इंटरनेट. ये टॉपिक मैं इसीलिए ये डेटा में दिखा रहा हूँ क्योंकि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है.
हम लोग सारा चीज़ करते हैं, बट मोबाइल को सिक्योर रखना है, अपने इंटरनेट को सिक्योर रखना है, अपना डेस्कटॉप को, लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर को, जिस नेटवर्क हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको सिक्योर रखना है। कैसे रखें, क्या सिक्योरिटी है, वो सब चीज़ जानना ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर बात करें कि एक और रिपोर्ट है कि ये टॉप 20 कंट्रीज़ विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूज़र्स, जो भी इंटरनेट यूज़र्स है उसका टॉप 20 कंट्री पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले है कौन, चाइना, देन इंडिया। सो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री फॉर द नंबर ऑफ इंटरनेट यूज़र्स इन द वर्ल्ड। ओके, सो ये डेटा दिखा रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया का जो इंटरनेट यूज़र्स 2020 का जो है ये दिखा रहा है, उसके बाद फिर कितना % उसका ग्रोथ रेट है। सो ये एक डेटा है। सो ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कि ये चाइना के बाद भी हो सकता है कि आज से 10 साल बाद, 20 साल के बाद कुछ ज़्यादा ही नंबर ऑफ़ इंटरनेट यूज़र के इंडिया नंबर 1 हो जाए, मे बी। So this screen also depict as we see the India is the second largest country after China. So if you see the gender distribution record or age distribution record or different various kinds of divisions according to the internet users. ओके, सो एज डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग एक पाई चार्ट में दिया गया है, इसमें आप देख सकते हो कि 12 से 15% जो है ये 14%, 14% जो है 12 से 15 साल के बच्चे यूज करते हैं इंटरनेट। 16 से 19 साल के बच्चे 17% इंटरनेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकॉर्डिंग टू एज ये कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, 71 मिलियन किड्स एज्ड बिटवीन 5 to 10 ऑल्सो गो ऑनलाइन थ्रू एडल्ट्स डिवाइस। दैट मीन्स क्या है कि 71 मिलियन बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स या तो फिर जो भी है अपना बड़े के मोबाइल से यूज़ करते हैं, 5 से 11 साल के बच्चे। ये एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये डेटा लिया गया है। ठीक है, सो इंडिया का कितना है नंबर ऑफ़ यूज़र्स अगर देखे जाए तो 503 मिलियन और चाइना में 850 मिलियन। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्या है कि हम लोग बात करें कि साइबर क्राइम का। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल वी हैव अवेयर एंड वी लोकल ऑल नो इन झारखंड द साइबर क्राइम। ओके, I think you already seen the web series Jamtara. Okay, so sharp increase of cyber crime in India during last decade. ये 2010 से लेकर के 2018-20 तक का डेटा है, ये 2018 का है। ठीक है, इसमें साइबर क्राइम का एक रिपोर्ट ग्रोथ दिखा रहा है। 2010 में नंबर ऑफ साइबर क्राइम 966। ओके, सो देयर वाज 966 ओनली साइबर क्राइम इन 2010 एंड आफ्टर इट इंक्रीजिंग एंड देख सकते हैं हम लोग कि 2017-18 में ये 27,248 ये अभी 30,000 के पार भी हो चुका है। 2020 तक का डेटा जो है ये साइबर क्राइम 2020 का। सो ग्रोथ रेट जो है ये एक्सपोनेंशियल है, e to the power x। सो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को प्रोटेक्शन करना चाहिए, हम लोग को जानना चाहिए अबाउट नेटवर्क सिक्योरिटी, हाउ टू सिक्योर आवर नेटवर्क, हाउ टू सिक्योर आवर सेल्फ while using internet. So do and don't while using internet, that is very important topic. In this picture we see that there are different social networking sites and like Twitter, Facebook, Instagram, Google, Gmail, Skype, Twitter, instant messaging, Pinterest and so many. Okay, so इसमें क्या होता है कि हम लोग सारे में अकाउंट क्रिएट बना हुआ है, सारे में हम लोग अकाउंट बनाते हैं, उससे डेटा कलेक्ट होता है। अगर हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन या कुछ अलग, इससे हम लोग का डेटा कलेक्शन हो सकता है। ठीक है, और कुछ उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि नेटवर्क अटैक्स होता है। तो ये सारे कलेक्शन यू हैव हर्ड अबाउट बिग डेटा। बिग डेटा क्या होता है कि कहीं से भी कोई भी डिफरेंट सोर्सेज लाइक सोशल नेटवर्किंग और भी डिफरेंट सोर्सेज से डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है और उससे भी हम लोग का
यूज़ किया जाता है। जैसे अभी इंडिया में बैन किया गया टिकटॉक और बहुत सारा इस तरह का बहुत सारा ऐप्स को। क्यों? सब लॉगिन करके रखते थे, उसमें हम लोग क्या देते थे? मोबाइल नंबर। एक्सेसिबिलिटी क्या रहता था? कैमरा का, मीडिया का और भी डिफरेंट सारा चीज़ का एक्सेसिबल रहता था। तो उसके डेटाबेस में वो सोचिए कि कितने करोड़ों, कितने मिलियंस ऑफ डेटा उसके पास है, राइट। सो अगर हम लोग कुछ भी यूज़ करें लाइक सोशल नेटवर्किंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, सो हम लोग को क्या करना चाहिए? अलर्ट रहना चाहिए, क्या क्या रूल्स एंड क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। In this slide we can see that this is a screenshot. So that is the live attacks from the different countries. This is the there is the attack origins and attack targets. डिफरेंट कंट्री से कहाँ से अटैक हो रहा है, एक मुझे मिला था तो इसको मैंने लगाया। तो इस तरह से कुछ अटैक्स होते हैं। अब हम लोग बात करें साइबर सिक्योरिटी की। वाई साइबर सिक्योरिटी? बिकॉज अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि उतना सारा हम लोगों का ऑनलाइन सारा चीज़ होता है। सो साइबर सिक्योरिटी इज़ द मेन थिंग, ठीक है। हम लोग को इस पर अलर्ट रहना चाहिए। सो इन दिस स्क्रीन we can see there are 7-8 key factors that depends and that implements the cyber security. Okay, so in this 8 factor we see one by one. सबसे पहला क्या है? एप्लीकेशन। साइबर सिक्योरिटी में ये एप्लीकेशन एक इम्पोर्टेंट रोल है कि व्हाट एप्लीकेशन यू आर यूजिंग, आप कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, दैट एप्लीकेशन इज सिक्योर और नॉट, ठीक है। आप मोबाइल में एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो या कंप्यूटर में, इंटरनेट में, ब्राउज़र में, कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा साइट्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एप्लीकेशन बहुत तरह के होते हैं। आप सॉफ्टवेयर फील्ड से हैं, आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन, काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, ओके। सो एप्लीकेशन आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये एक की फैक्टर है, दैट इज़ सिक्योर और नॉट। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन, व्हाट इंफॉर्मेशन यू आर यूजिंग और व्हाट इंफॉर्मेशन यू आर शेयरिंग, ठीक है। आप क्या यूज़ कर रहे हो इंफॉर्मेशन और कौन सा इंफॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहिए, कौन सा इंफॉर्मेशन यूज़ करना चाहिए और कितने इंफॉर्मेशन को आप यूज़ कर रहे हैं, रिलेवेंट, दैट इज़ रिलेवेंट और नॉट। थर्ड वन इज़ नेटवर्क। सो नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हो, पब्लिक नेटवर्क है या प्राइवेट नेटवर्क है, या कौन सा नेटवर्क में नेटवर्क सिक्योरिटी है कि नहीं है, ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल वो फॉलो कर रही है। तो ये नेटवर्क कौन सा यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ द थर्ड फैक्टर। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो क्या ये सही रहेगा? नहीं। साइबर कैफ़े में जाके अगर आप अपना एटीएम कार्ड से कार्ड पेमेंट होती है या तो फिर आप नेट बैंकिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आपको पता है कि वो दैट इज़ अनसिक्योर, ठीक है। सो कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ फोर्थ इज़ वन इज़ ऑपरेशनल। ऑपरेशनल मीन्स आप क्या ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आप काम क्या कर रहे हो उसमें। अगर आप आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें काम क्या कर रहे हो, आप सिक्योरिटी में क्या काम कर रहे हो, ठीक है, तो ऑपरेशनल। नेक्स्ट वन इज़ इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या है कि एक सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है, ठीक है। इंक्रिप्शन एक सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है जिसमें आप क्या कर सकते हो कि आप कौन सा इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, कि आपका डेटा इंक्रिप्टेड है कि नहीं है। इंक्रिप्टेड मीन्स क्या है, हम लोग आगे देखेंगे कि इंक्रिप्शन क्या होता है और डिक्रिप्शन क्या होता है, उसके बाद भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। बट इंक्रिप्शन जो है, आपका इंक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है एक की फैक्टर है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में। नेक्स्ट इज एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल इज़ व्हाट? एक्सेस कंट्रोल कि आपका क्या एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है। व्हाट रोल इज़ योर, व्हाट इज़ योर रोल, you are a admin or you are a normal user or you are a some special user, types of authentication and authorization, that is access control. access control आपका पासवर्ड प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, तो देन वो क्या है कि आप ऑथराइज्ड हुए, एडमिन आपका ऑथराइज किया। बट आप ऑथराइज्ड कैसे हो जाएंगे वहाँ से, जब तक कि आपको
वो पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस करने नहीं मिलेगा। ठीक है, सो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का। सपोज़ एक कोई बैंक का मैनेजर है, वो क्या कर सकता है, वो सारा चीज़ को मैनेज कर सकता है अपना लॉगिन करने के बाद। ठीक है, बट एक अगर कोई पीओ है या क्लर्क है या कुछ उसका अकाउंट है, तो वो अपना अकाउंट लॉगिन करने के बाद वो सारा चीज़ मैनेज नहीं कर पाएगा, ना कि किसी का अकाउंट डिलीट कर पाएगा, ना कि कुछ अदर एडमिन एक्सेस कर पाएगा, राइट। So that is access control, in which we can talk about accessibility and authentication and authorization. Next is end user education. That is very important role. आप कितनों इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगा हुआ है, कितना भी नेटवर्क सिक्योर है, कौन सा एप्लीकेशन सिक्योरिटी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका नॉलेज नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है। So that is end user education, that is very important role play in the cyber security और network security. So आपका कितना जानकारी है ये भी एक important factor play करता है। And next one is disaster recovery. Disaster recovery क्या है, अगर आपका कुछ प्राकृतिक आपदा से अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सिस्टम क्रैश हो गया या कुछ हो गया, ठीक है, तो उससे क्या है कि ये भी ट्रांजैक्शन में कुछ इश्यू हो सकती है। सपोज़ आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें से नेटवर्क फेल हो गया, या तो फिर कुछ आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन रुक गया, तो ये सब चीज़ है। तो दीज आर द की फैक्टर इन द साइबर सिक्योरिटी। So simple thing, do follow the rules that your parents and teachers and guide have set regarding the time you are allowed to use the internet. बच्चे के लिए हैं, बट हम लोगों को भी अप्लाई करने चाहिए, बड़ों को, बच्चे से लेकर बड़ों को अप्लाई करना चाहिए। अननेसेसरी क्यों वेस्ट करें फालतू टाइम इंटरनेट को देने के लिए। सो जो अपने पेरेंट्स हैं, अपने टीचर्स हैं या गाइड हैं या बड़े हैं, जो आपको टाइम अलॉट किया गया है, जितना टाइम आपको इंटरनेट में जो काम का चीज़ है, जो आपको लर्न करना चाहिए, जो सीखना चाहिए, उतना ही तक यूज़ करना है। अननेसेसरी टाइम में या अननेसेसरी नहीं यूज़ करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज डू स्टे ऑन पब्लिक एंड मॉनिटर्ड चाइल्ड फ्रेंडली चैट रूम इफ़ यू आर यूजिंग इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, अगर आप इंस्टेंट मैसेजिंग कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको चाइल्ड फ्रेंडली चैट रूम जो भी है उसमें यूज़ करना चाहिए। प्राइवेट चैट किसी से या किसी तरह का उस तरह से आती है तो नहीं करना चाहिए। So next we will talk about the 8 steps to stay safe online, right। हम लोगों को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। इन 8 स्टेप में से हम लोग ऑनलाइन सेफ एक तरह से हम लोग पूरी तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं अपने आप को जब हम लोग इंटरनेट यूज़ करें तो, ठीक है। और हम लोग सारे चीज़ इसको हम लोग सारे के बारे में जानते भी है, बस जस्ट वी डिस्कस इट। सो फर्स्ट इज़ बी नाइस टू पीपल ऑनलाइन। ठीक है, किसी भी ऑनलाइन हम लोग कभी रहें, कहीं पर भी रहें तो हम लोग को वी हैव टू गुड बिहेवियर। ओके, हम लोग को अच्छा बिहेवियर वगैरह तो नॉर्मल वैसे भी रहना चाहिए। नेक्स्ट, टेक केयर विथ व्हाट यू शेयर। आप, मैंने पहले ही बात किया कि अगर आप मोबाइल में जो अपना मोबाइल रखा हुआ है, आपका नेट ऑन है, इंटरनेट ऑन है, दैट मीन्स that is not your personal mobile, you are connected to the all over the world। okay, so take care what you share। आप क्या शेयर कर रहे हो, अपना पिक किसी को शेयर कर रहे हो, अपना ईमेल आईडी शेयर कर रहे हो, अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन नंबर शेयर कर रहे हो। सो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन वी हैव टू शेयर, नथिंग एल्स। ओके, नेक्स्ट, कीप पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट। हम लोग का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है हम लोग को प्राइवेट रखना चाहिए, लाइक योर कॉन्टैक्ट नंबर, योर एड्रेस, योर ईमेल आईडी, योर डेट ऑफ बर्थ और वट एवर, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको आइडिया भी नहीं है कि इस डेटा से वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अभी टिकटॉक जैसा और भी मोबाइल ऐप या उस तरह का कुछ ऐप है जिसके ज़रिए उस ऐप का लोगों को एंटरटेनमेंट कराना नहीं है। उस ऐप को क्या है कि जस्ट डेटाबेस से, मतलब उसका डेटाबेस क्रिएट करना है, बिग डेटा क्रिएट करना है कि एक
डेटा कलेक्ट करना है, सबका मोबाइल नंबर, नेम वगैरह वो सब से। ओके, सो कीप योर पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट। चेक योर प्राइवेसी सेटिंग। प्राइवेसी सेटिंग हर जगह होती है, ब्राउज़र से लेकर के आपको सोशल नेटवर्किंग साइट से लेकर के ईमेल से लेकर के हर जगह प्राइवेसी सेटिंग्स होती है। तो प्राइवेसी सेटिंग्स आपको हमेशा चेक करते रहना चाहिए, और जो सही लगे, जो नहीं शेयर करना के लगे, वो शेयर हमें नहीं करना चाहिए। तो वो सब सेटिंग्स हम लोग को सेव करके रखना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ नंबर इज़ नो हाउ टू रिपोर्ट पोस्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे पोस्ट रिपोर्ट वगैरह करें, कैसे कमेंट करें, कैसे क्या करें। ठीक है। नेक्स्ट इज कीप योर पासवर्ड सेफ। अपना पासवर्ड तो सेफ रखना चाहिए, और पासवर्ड सेफ के साथ साथ कम्प्लेक्स भी रखना चाहिए। वी शुड यूज़ टू क्रिएट ए पासवर्ड द कंबाइन द अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिक एंड सम स्पेशल कैरेक्टर। लाइक अगर आपका नाम अगर राज है तो राज 123@123, दैट इज़ वेरी सिंपल पासवर्ड। We have to create it more complex. Okay, that is the combination of the alphanumeric, numeric, and some special character like hash, dollar. Okay, so जैसे अगर इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड आप लोग रखते हैं तो क्या रख देते हैं अपना नाम से, और 321 123 इस तरह से नहीं रखना है। ठीक है, दैट इज़ वो उसको कॉमन नहीं करना है। हैकर्स इसको इजीली हैक कर सकते हैं। एक मेथड होता है हिट एंड ट्राई करते करते अपना नाम से, यूज़र नेम से वो पासवर्ड मिल जाता है, और उसके बाद वो उस तरह से हैक हो सकता है। नेक्स्ट, नेवर मीट एनीवन इन द पर्सन यू हैव ओनली मेट ऑनलाइन। ठीक है, अब उस तरह से पता ही है कि किसी से मिलना नहीं है चैट से कि मीट मी। If you see anything online that you don't like or you find upsetting, so tell someone you trust। अपने पेरेंट्स को बताइए, सबको बताइए, ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, इस तरह से कुछ नहीं करना चाहिए हमें। सो ये 8 टिप्स अगर अपनाएं हम लोग, तो हम लोगों को क्या होगा कि हम लोग अपने आप को सिक्योर फील करेंगे, हम लोग इंटरनेट यूज़ करें तो। ठीक है। सो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट और नेटवर्क, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले कुछ क्लासेस में कि नेटवर्क और हार्डवेयर नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसमें नेटवर्क और वर्सेस इंटरनेट, इसका एक है क्या है नेटवर्क और इंटरनेट में अंतर। ठीक है, तो दोनों बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स तो हैं ही, बट इंटरनेट क्या है, इंटरनेट भी एक नेटवर्क है दैट इज़ कनेक्टेड टू द वर्ल्ड वाइड। ओके, ये वेब से पूरा कनेक्टेड है। और लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक जस्ट एक नेटवर्क है जो कि इसमें इंटरनेट होना ज़रूरी नहीं कि इसमें इंटरनेट हो। सो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्वर, दे प्रोवाइड सर्विसेज। सो एक कनेक्शन जो कि computers or any computing devices, not only computers, any computing devices like mobile or any computing devices that is connected to a network. So network ये है इंटरनेट। तो नेटवर्क में भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, और इंटरनेट में भी होते हैं। तो वो हम लोग को देखना है कि क्या सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है नेटवर्क का, क्योंकि नेटवर्क्स में अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP कनेक्टेड है, दैट मीन्स वो इंटरनेट हो गया। और उस इंटरनेट आप कनेक्टेड हैं एक नेटवर्क में, एक इंटरनेट में। तो आप कौन सा वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, वेबसाइट दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम HTTPS और HTTP नॉर्मल। सो वो सब सारी चीज़ों को देखना रहता है। सो एट फर्स्ट हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, या जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो, तो उस डिवाइस को हम लोगों को प्रोटेक्ट करना रहता है। अपना डिवाइस ही प्रोटेक्ट नहीं रहेगा तो नेटवर्क और सिक्योरिटी और इंटरनेट सिक्योरिटी तो बात की बात है। ठीक है, तो प्रोटेक्ट योर डिवाइस, प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फर्स्ट। उसके लिए कुछ है, क्या क्या है, कीप अप विथ सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी अपडेट्स। ठीक है, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आपको आजकल तो जेन्युइन विंडोज़ आ रहा है, हर जगह विंडोज़ 10 दे ही रहा है। तो उसमें हम लोगों को क्या करना है कि हमेशा सिस्टम को अपडेट रखनी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को अपडेट रखनी है,
और जो भी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी है या तो फिर जो भी अपडेट्स आ रही है उसको अपडेट बीच बीच में करते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इनेबल ए फायरवॉल। फायरवॉल आपको इनेबल करना है, राइट। फायरवॉल आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो फायरवॉल पता ही है, फायरवॉल आपको इनेबल करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एडजस्ट योर ब्राउज़र सेटिंग। आप अपना ब्राउज़र्स में प्राइवेसी सेटिंग्स वगैरह देख लीजिए, उसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल इसको देख लेंगे कहाँ से हम लोग प्राइवेसी सेटिंग्स वगैरह यूज़ करते हैं, क्या करते हैं। इंस्टॉल एंटीवायरस एंड एंटी स्पेयर सॉफ्टवेयर। आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में एंटीवायरसेस वगैरह इंस्टॉल कीजिए। 50,000 का कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, बट 2,000 रुपया का एंटीवायरस, 1,000 रुपया का एंटीवायरस नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में अच्छे कंपनी का एंटीवायरस को यूज़ कीजिए। एंटी स्पेयर सॉफ्टवेयर्स है बहुत सारे, उसको यूज़ कीजिए। पासवर्ड प्रोटेक्ट योर सॉफ्टवेयर एंड लॉक योर डिवाइस, ठीक है। पासवर्ड अपने जो भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर या जो भी कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स है उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखिए और अपने डिवाइस को भी लॉक रखिए, ठीक है। बहुत तरह का लॉक मैकेनिज़्म है, सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है। एक सिक्योरिटी होता है आपका बायोस लेवल पर ही, ठीक है। सिस्टम स्टार्ट करते समय ही जो बायोस ओपन होती है उसमें भी आप लॉक लगा सकते हो, दैट इज़ बायोस पासवर्ड। तो बायोस पासवर्ड भी लगा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट व्हाइल इनिशिएटिंग द विंडोज़ और ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, देन यू कैन ऑल्सो सेट द पासवर्ड। सो 2 लेयर का प्रोटेक्शन हो गया आपका, ठीक है। तो बहुत तरह का मैकेनिज़्म है, और भी कुछ मैकेनिज़्म है जिसमें आप एक्सटर्नल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिसमें आप पासवर्ड लगा सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर ऐप्स में, डिवाइस में, कोई भी चीज़ में। इनक्रिप्ट योर डेटा। आप अपने डेटा को इनक्रिप्ट कीजिए, ठीक है। इनक्रिप्ट क्या होता है, अगर सपोज़ कोई भी टेक्स्ट है या मैसेज है, उसको अगर हम लोग लिखा हुआ सिंपल सा कि दिस इज़ ए सिंपल एग्जांपल, देन वो कुछ हैश या कोड से इस तरह से लिखा हुआ कि नॉर्मल आदमी उसको पढ़ नहीं सकता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो कोई डेटा हो, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ डेटा, ठीक है। उसको इनक्रिप्ट रखिए। सपोज़ आपके डी ड्राइव में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ऑफिस के, या आपके फ्रेंड, आपके कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन या कुछ भी, डी ड्राइव को लॉक कर दीजिए। हाउ टू लॉक योर डी ड्राइव? There are various third party softwares, or in Windows 7 or in Windows 8 or I think Windows 10 there is a BitLocker encryption, okay. So BitLocker encryption है, और भी कुछ कुछ तरीके हैं। उस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिस्टम को, अपने ड्राइव को या तो फिर कोई पर्टिकुलर फोल्डर को लॉक कर सकते हैं। एंटीवायरस यूज़ कीजिए, एंटीवायरस में भी है, ठीक है। नेक्स्ट, यूज़ अ VPN। VPN stands for anybody. VPN stands for they can message, they can raise your hand. VPN stands for okay, Rajkishore Prajapati, good. Virtual private network. So we can use a VPN, okay. So we can create a VPN, virtual private network हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे जैसे कि अगर आप कुछ डाउनलोड्स कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि IP को भी हाइड करता है, अपना IP को चेंज करता है। तो इस तरह से आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने कंप्यूटर्स को, अपने कंप्यूटिंग डिवाइसेस को, अपना एंड डिवाइस को यू हैव टू प्रोटेक्ट फर्स्ट। यस, नेक्स्ट हम लोग बात करें कि प्रोटेक्ट योर ब्राउज़र। आप अपने ब्राउज़र को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत तरह का प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ ब्राउज़र्स है जो कि हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, और भी ब्राउज़र्स हैं बट कुछ ये पॉपुलर्स हैं, जैसे कि क्या है,
गूगल क्रोम फर्स्ट है, सेकंड में है इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी and UC browser, Netscape Navigator. Okay, so these are the some most popular browsers nowadays, and we can generally we use what Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge और Mozilla Firefox. Okay, so इसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी सेटिंग्स वगैरह को हम लोग सेटिंग्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग का प्रोटेक्शन और भी बढ़ जाता है। सपोज़ हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें और तो पासवर्ड को वो सेव ना रखें, तो उस तरह की कुछ चीज़ें जो है हम लोग इस ब्राउज़र्स में हम लोग सेटिंग कर देते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल में कि कैसे इसको हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। तो जस्ट अपने ब्राउज़र में जाएं और सपोज़ ये मैंने मोजिला फायरफॉक्स स्टार्ट किया, ठीक है, और इसमें ये कॉर्नर में जो ये है मेनू है, इस मेनू में जा कर के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बहुत सारा चीज़ है, राइट क्लिक करने से ये मेनू आता है। तो इसमें देखिए लॉगिन एंड पासवर्ड, तो जो भी लॉगिन पासवर्ड जो आपका सेव रहती है, ठीक है, यहाँ पर ये लिस्टेड है, यहाँ पर कुछ सेव किया हुआ नहीं है, दैट्स वाई ये कुछ शो नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग फिर से देखते हैं, यहाँ पर कुछ एड ऑन्स होती है, ठीक है, जो भी एड ऑन्स है, जैसे कि कुछ प्लगइन, ठीक है, बहुत सारा प्लगइन आता है ब्राउज़र में, वो प्लगइन लगा लेंगे। जैसे कि अगर आपको ब्राउज़ करते हैं अपना इसमें, तो उसमें बहुत सारा प्लगइन्स है, जैसे कि एड ब्लॉकर होता है, जो कि ऐड वगैरह आते रहते हैं, ठीक है, तो ऐड को आपको नहीं लाना है, वहाँ पर बार बार क्लोज़ करना पड़ता है। तो क्या होता है, प्लगइन ऐड ब्लॉकर प्लगइन लगा देंगे तो हम लोग को वो ऐड को ब्लॉक कर देगा। तो वो है कुछ एक्सटेंशंस है, तो एक्सटेंशंस जो भी होता है, जैसे कि टाइपिंग वगैरह, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, या उस तरह से बहुत सारा चीज़ है, वो एक्सटेंशंस, तो एक्सटेंशंस प्लगइन्स वगैरह का यहाँ पर आपका रहेगा, ठीक है। हाँ, जैसे ये एक्सटेंशंस यहाँ पर इस ब्राउज़र में इस तरह से है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर कस्टमाइज में जाएंगे, सॉरी, प्रीफ्रेंसेस। यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला में सेटिंग्स को यहाँ पर प्रीफ्रेंसेस एज ए वर्ड किया गया है, जिसमें से सारा सेटिंग्स ये अवेलेबल यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर जनरल सेटिंग्स वगैरह है सारा, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अब होम पेज क्या रहेगा, डिफ़ॉल्ट पेज क्या रहेगा, वो सब चीज़ के बारे में रहता है, ठीक है। मेन चीज़ है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर ब्राउज़र्स प्राइवेसी। सो हम लोग ये स्टैंडर्ड में है, ठीक है, और ब्राउज़र्स को भी हमेशा अपडेट्स रखना चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड में है, और यहाँ से जैसा प्राइवेसी जो चीज़ का परमिशंस दिया हुआ है उसके बारे में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर है कुकीज़ एंड साइट डेटा, तो हमेशा बीच बीच में क्या करना चाहिए, हम लोग को कुकीज़ वगैरह डेटा को डिलीट करते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लियर डेटा है, तो यहाँ पर डेटा कुकीज़ एंड साइट डेटा और कैश मेमोरी कैश डेटा वगैरह जो है ये सब डिलीट कर देगा, क्लियर कर देंगे तो, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ें हिस्ट्री में यहाँ पर है। फायरफॉक्स विल रिमेंबर हिस्ट्री, अभी यहाँ किया हुआ है। अगर कर देंगे नेवर रिमेंबर हिस्ट्री, तो क्या होगा कि जब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे, जो टाइप करेंगे इस ब्राउज़र में, बस वहीं तक रहेगा। कंप्यूटर जैसे ऑफ हो जाता है, नेक्स्ट बार ऑन कीजिएगा, वो हिस्ट्री कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह का कुछ सेटिंग्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर नीड, यू कैन सेट इट। ओके, सो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इन द ब्राउज़र, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक बार गूगल क्रोम में भी, ठीक है। तो ये क्रोम है, क्रोम में हम लोग नया टैब में आते हैं। यहाँ पर 3 डॉट्स जो है, यहाँ पर ये सेटिंग है, ये हिस्ट्री है, डाउनलोड्स है, बुकमार्क्स है, बहुत सारा ऑप्शन है, जिसमें से हम लोग जाएंगे कहाँ पर, सेटिंग्स में, उसमें प्रेफरेंसेस थी, इसमें सेटिंग्स है, राइट। तो ये सेटिंग्स मिला। अब यहाँ पर से भी बहुत सारा चीज़ है, जिसमें से हम लोग जा सकते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। सो इसमें भी ऑप्शन आपको मिल जाएगी, क्लीन ब्राउजिंग डेटा, कुकीज़ एंड अदर साइट डेटा, सिक्योरिटी, साइट सेटिंग, ये सब सारा चीज़, राइट। सो ये था ब्राउज़र का आपका सेटिंग्स का प्राइवेसी एंड पॉलिसी के बारे में, ठीक है। सो दैट वाज अनदर एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर
सो फर्स्ट जो भी हम लोग यूज़ करें कोई भी ब्राउज़र, तो ब्राउज़र का सेटिंग्स वगैरह रखें। ख़ास तौर पे अगर कहीं साइबर कैफ़े में जाके हम लोग अगर आप बैठे इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, अगर वहाँ पर जाकर, तो क्या करो कि उसमें इनकॉग्निटो मोड में टैब को ओपन करो। ठीक है, उससे क्या होता है कि हिस्ट्री वगैरह रिमेंबर नहीं रखती है वो। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स को, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है जब हम लोग ब्राउज़र सेटिंग्स वगैरह करें तो। So there is the least or key factor, we can say that there is a safer web browsing techniques, okay, that makes web browsing secure, and by using the following steps. The steps, you can see the scan downloaded file before executing. अगर कोई भी exe फाइल है, एग्जीक्यूटिंग फाइल है या कोई भी तो उसको हम लोग क्या करें, सबसे पहले स्कैन कर लें। सबसे पहली बात है कि ईमेल में जो है जीमेल वो exe फाइल सेंड करने ही नहीं देती है। ठीक है, कोई भी एग्जीक्यूटिबल फाइल हो या वैसा कुछ भी प्रोग्रामेबल फाइल हो जो कि दैट कैन बी कॉज और वार्म और वायरसेस, सो जीमेल ऑटोमेटिक प्रिवेंट देम। ओके, सो और भी अगर कोई दूसरे लिंक से अगर हम लोग को क्लिक करने से मिले exe फाइल जो कि डाउनलोड करना बोल रहा है या कुछ वैसा कुछ है, तो उसको हम लोग स्कैन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट वॉच आउट फॉर फिशिंग। अब देखिए क्या वो है। नेक्स्ट, डोंट रीयूज़ पासवर्ड्स। कोई भी वेब ब्राउज़र में पासवर्ड्स को एक ही, हम लोग को लगता है पासवर्ड भूल जाएंगे, बार बार एक ही पासवर्ड हमेशा यूज़ करते हैं। ठीक है, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग का हो, चाहे वो आपका कोई भी यूपीआई का हो, कहीं पर भी हो, एक ही पासवर्ड यूज़ करते हैं। अगर एक पासवर्ड पता चल जाएगा तो सब चीज़ गया फिर। ओके, सो ये हम लोग को ये भी देखना है। नेक्स्ट, यूज़ HTTPS। सो HTTPS लगा हुआ, दैट मीन्स क्या है, सिक्योर है। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे HTTPS के बारे में। रीड प्राइवेसी पॉलिसी। हम लोग एक चीज़ और करते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी देखते नहीं हैं, तुरंत क्या करते हैं कि हाँ यस यस ओके चेक मार्क एंड एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट हमेशा, बट उसको अगर अच्छे से देख लें तो शायद कभी एक्सेप्ट भी ना करें। ठीक है, सो प्राइवेसी पॉलिसी जिसमें कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, iOS एप्लीकेशन, कोई भी चीज़, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या वेब बेस्ड एप्लीकेशन, उसका प्राइवेसी पॉलिसी को केयरफुल्ली रीड करना है हम लोगों को। राइट, नेक्स्ट, रेगुलरली मॉनिटर योर बैंक स्टेटमेंट। सो आपको पता चलेगा कि आज आपके बैंक में 1 लाख रुपये है, कल के डेट में 1 महीना बाद चेक कर रहे हैं आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, ख़त्म। सो बैंक अकाउंट को भी मॉनिटर करते रहना है हमेशा, ऐसा नहीं कि बैंक से पैसा गायब हो गया हो। ठीक है, कहीं से कॉल आया है, OTP बता दिए हैं, यस ये कार्ड नंबर है, CVV नंबर है, ये OTP है, ये है। आजकल तो कोरोना का वैक्सीन के चलते बहुत सारा साइबर क्राइम हो रहा है। ठीक है, सो बहुत सारा रीज़न है, बहुत सारा टेक्निक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल एंड पर्सन्स आर देयर एंड डिफरेंट माइंड्स। ओके, सो वी हैव टू से एंड हम लोग को हमेशा वैसा कुछ नहीं करना है जो इसमें कि आगे कुछ गड़बड़ हो। सो नेक्स्ट, अवॉइड पब्लिक और फ्री वाईफाई। स्टेशन में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, अच्छा चलो भाई वाईफाई मिल गया है, यूज़ कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। खैर स्टेशन में तो वो सिक्योर है, बट कहीं फ्री वाईफाई वाला है जहाँ पर हम लोग को तुरंत यूज़ कर हो सकता है कि उस नेटवर्क में यूज़ करके हम लोग के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी पब्लिक वाईफाई में कनेक्टेड हो, दैट मीन्स वो आपके बारे में सारा कुछ पता कर सकता है इवेंट। ठीक है, कैसे? क्योंकि आपका मोबाइल या तो फिर आपका कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस आपके नाम पर है, और उससे क्या होगा कि आपके डिवाइस में जो एक फ़िज़िकल एड्रेस होती है वो मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, अब जब कनेक्टेड है तो आईपी एड्रेस से कनेक्टेड है, वाईफाई से, आईपी से मैक से सिंक किया हुआ रहता है, और उससे आप क्या सर्च कर रहे हैं उस एल्गोरिदम से एनालिसिस कर सकता है वो एल्गोरिदम लगा करके, और कि आप किस तरह का एक्टिविटी पर्सन है, क्या सर्च कर रहे हैं। अगर 30 से 40 मिनट के अंदर आप क्या सर्च किए या कुछ ट्रांजैक्शन गलती से कर दिए तो उस ट्रांजैक्शन के डिटेल से आपको कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो पब्लिक और फ्री वाईफाई को अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक हो सके। डिसेबल स्टोर्ड पासवर्ड्स। आपका जो भी पासवर्ड स्टोर्ड है या तो फिर जो भी है आप उसको हिस्ट्री क्लीन कर दीजिए, कैश क्लीन कर दीजिए। ठीक है,
और टाइम टू टाइम आपको पासवर्ड भी चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। चाहे वो एटीएम का हो, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, यूपीआई हो, या कोई भी चीज़ हो, खास करके इन सब चीज़ का टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए, पैटर्न बदलते रहिए। नेक्स्ट, टर्न ऑन योर ब्राउज़र्स पॉपअप ब्लॉकर। ब्राउज़र में एक पॉपअप ब्लॉकर भी है, वो उसको भी आप टर्न ऑन रखिए। वो पॉपअप ब्लॉकर क्या करता है, ब्लॉक कर देता है बहुत सारा कंटेंट को। अगर कुछ वेबसाइट्स में या कुछ उस तरह में उस तरह का चीज़ें हैं तो वो ब्लॉक करती है, ठीक है। सो ये आपका था कि सिर्फ वेब ब्राउजिंग, आप वेब ब्राउजिंग जब करें तो आपको अपने आप को सिक्योर एंड सेफ रखना है। सो जस्ट ए मिनट फॉर यू, you can type in chat box or chat room. So what is the name of this social media icon? इस सोशल मीडिया आइकन का क्या नाम है? किसी को कुछ, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं, ठीक है। अंशु कुमारी लिंक्डइन, भारती कुमारी लिंक्डइन, प्रीति चटर्जी लिंक्डइन, गुड, वेरी गुड। एंड हमको लग रहा है कि सारे को यूज़ करते होंगे, सारे को पता है कि ये क्या चीज़ है, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेटवर्क सिक्योरिटी और इंटरनेट की बात करें तो हम लोग के पास एक और चीज़ है कि इंटरनेट के बारे में जान रहे हैं, नेटवर्क के बारे में जान रहे हैं। तो नेटवर्क्स में जो कुछ एक OSI लेयर डिफरेंट सेटअप किया गया है, जिसका कुछ अलग ही रूल्स एंड रेगुलेशन है। सो जिसको प्रोटोकॉल्स में डिवाइड किया गया है, और हर एक लेयर में कुछ न कुछ फंक्शनलिटी और कुछ प्रोटोकॉल्स डिफाइन किया गया है। सो हमको लग रहा है कि ये आप लोगों ने ऑलरेडी देख चुके होंगे पहले से, ठीक है। सो इंटरनेट OSI लेयर में हम लोग का क्या क्या लेयर्स हैं? देयर आर 7 लेयर्स इन द OSI रेफरेंस मॉडल, दैट इज़ फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। सो सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन इज़ कम्बाइंड विथ वन, क्योंकि ये एक तरह से फ्रंट एंड हम लोग बोल सकते हैं, या तो फिर एंड टू एंड जैसे हो गया, ठीक है। फाइनली जो जैसे कि ब्राउजिंग हम लोग कर रहे हैं या टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो इस सब हर एक लेयर में कुछ न कुछ प्रोटोकॉल्स यूज होता है, ठीक है। सबको ही पता है कि हम लोग नेटवर्क से, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हम लोग को एक IP एड्रेस असाइन किया जाता है। सो IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ARP, RARP, IGMP, ICMP. So these are the internet network layer, that is third layer protocols. Transport layer protocol, TCP and UDP, data user datagram protocol and ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ओके। सो HTTP हम लोग यूज़ करते हैं, या SMTP, FTP, ये सब जो है, जो भी प्रोटोकॉल्स, जो भी सर्विस यूज़ करते हैं वो OSI लेयर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सो थोड़ा सा एक और भी बात करें कि अटैक्स की, कि अटैक्स क्या होता है, या तो फिर इसको हम लोग थ्रेट्स बोलते हैं। दो तरह का अटैक्स होता है, एक्टिव एंड पैसिव अटैक्स, ओके। सो हम लोग बात करें कि अटैक्स की, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं पैसिव अटैक। पैसिव अटैक क्या होता है कि जैसे कि सेंडर और रिसीवर है, ठीक है। सेंडर और रिसीवर के बीच में मैसेज को वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहता है, ठीक है, कि क्या मैसेज हो रहा है, क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, बट उसका मैसेज को कोई मॉडिफाई नहीं करता है। दैट इज़ पैसिव अटैक, ठीक है। सपोज देयर आर टू users A and B. A send messages or some information to B, and
there is another third user, or you can say attacker. So C. Okay, so they can he can read the message, continue monitor the message, but he or she cannot modify the message. That is passive attack. Okay. सो वहीं पर एक्टिव अटैक क्या होता है कि ये ऐसा अटैक है जो सेंडर और रिसीवर के बीच में मैसेज को तो कंटिन्यूस रीड करेगा ही, और साथ ही साथ वो क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा. सपोज अगर कोई मैसेज किसी को भेजता है, तो अगर वो भेज रहा है कि दिस इज ए मैंगो, तो उसको मिलेगा क्या, दिस इज ए कैट या दूसरा कुछ. मतलब वो कंटेंट को मॉडिफाई करके वो मैसेज करता है. ठीक है, तो ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी का एक पार्ट है, जिसमें टाइप्स ऑफ अटैक्स आर देयर. जिसमें पैसिव अटैक में डिफरेंट काइंड होता है, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट, ट्रैफिक एनालिसिस. एक्टिव अटैक में कुछ होता है जैसे कि मस्कर्ड, रिप्ले, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज कंटेंट एंड डिनाइल ऑफ सर्विस, दैट इज़ डॉस. सो ये उतना डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ, बट जस्ट एक इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि अटैक्स क्या होता है, कैसे अटैक करते हैं, एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक क्या होता है. नेक्स्ट हम लोग बात करें कि डेटा इंक्रिप्शन का. ठीक है, ये भी एक क्रिप्टोग्राफी का पार्ट है, क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी में है. तो डेटा इंक्रिप्शन क्या होता है, दो टर्मिनोलॉजी है, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. इंक्रिप्शन क्या होता है, सपोज एक कोई फाइल है जिसमें एक प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो कि हम लोग रीड कर सकते हैं. दिस इज ए राम, दिस इज ए बॉल, दिस इज ए बैट, वट एवर. सो दैट इज़ प्लेन टेक्स्ट. और उसी को कुछ पर्टिकुलर एल्गोरिदम के ज़रिए, कुछ एक लॉजिक के ज़रिए क्या किया जाता है, एक उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक साइफर टेक्स्ट में, एक जो कि अनरीडेबल फॉर्मेट में होता है, जिसको हम लोग साइफर टेक्स्ट बोलेंगे, जो कि हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज़ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट. सो बहुत सारा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम होता है, जैसे कि MD5 है, DES है, और भी बहुत सारा RSA है, और भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है. तो और जस्ट उसका रिवर्स क्या होता है, इंक्रिप्शन का रिवर्स डिक्रिप्शन, जो कि साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है किसमें, प्लेन टेक्स्ट में, by using certain algorithm. So in encryption process and in decryption process there is a key. So you can say that this key is the public key or private key or different kinds. algorithm जो होता है encryption decryption का, public key होता है, public encryption, private encryption, decryption वगैरह होता है. ठीक है, तो ये जस्ट एक बता रहे हैं कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है. मैं उसका डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. ओके, सो टू कन्वर्ट द प्लेन टेक्स्ट इन द साइफर टेक्स्ट बाय यूजिंग द सर्टेन एल्गोरिदम, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्रिप्शन. एंड जस्ट रिवर्स इट, टू कन्वर्ट द साइफर टेक्स्ट into a plain text by using the certain algorithm, that process is called decryption. Right? एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पर हम लोग का आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. क्यों, क्योंकि आज के डेट में ये भी एक बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही हाई सिक्योर है. ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. सो नेटवर्क सिक्योरिटी तो है ही, बाय इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, यहाँ पर एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या होगा कि एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड सर्वर होता है सब में. क्योंकि जो भी वेब से कनेक्टेड है, जितने भी यूज़र्स हैं, इसमें एक लेज़र मेंटेन किया जाता है, एक अकाउंट्स एक तरह से मेंटेन किया जाता है, जिसमें सारा का इंफॉर्मेशन सारे के पास रहता है. अगर एक का इंफॉर्मेशन अगर सपोज़ कुछ डिस्कनेक्ट हो गया या कुछ हो गया, तो उससे उसको कोई फेलियर हो गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है. उसमें वो ज़्यादा ही ये सिक्योरिटी मेंटेन पर्पज से किया जाता है. ठीक है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड रहने से दिक्कत है ना. अगर आपका इंफॉर्मेशन, अगर सब 10 जन का इंफॉर्मेशन किसी एक जन के पास है, तो क्या हो गया, वो सेंट्रलाइज्ड है. अगर 10 जन का इंफॉर्मेशन 10-20 जन के पास है, दैट इज़ डिसेंट्रलाइज, सारा का इंफॉर्मेशन सबके पास है. राइट. सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी एक साथ आज का नया टेक्नोलॉजी है, जिसमें बिटकॉइन वगैरह का नाम सुने होंगे. तो बिटकॉइन वगैरह ये सब सारा चीज़ इसमें यूज होता है, और भी बहुत सारा सिक्योर है. तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इट इज़ ऑल्सो एक फैक्टर इन आवर नेटवर्क सिक्योरिटी और नेटवर्क टेक्नोलॉजी.
ओके। सो नेक्स्ट हम लोग एक और देखें कि डू क्लोज द वेब ब्राउज़र इमीडिएटली इफ़ यू आर सी एनी इमेजेस एंड अदर कंटेंट दैट आर राइट फॉर योर एज। डू टेल योर पेरेंट्स अबाउट दिस इमीडिएटली। ठीक है, बहुत सारा ऐसा दिखता है नेट में, तो वो सब अगर आपके इसके अकॉर्डिंग और आपको ये है तो आपको पेरेंट्स को बताइए और इमीडिएटली इन्फॉर्म कीजिए, सारे को क्लोज़ कर दीजिए वेब ब्राउज़र को या उसको इनकॉग्निटो मोड में यूज़ कीजिए। डू यूज़ अलियास और निकनेम एवरी टाइम यू इंटर चैट रूम्स एंड फॉरम्स। ठीक है, अगर आप तो ऑलरेडी हम लोग देखें कि आपका निकनेम में एलियास यूज़ कीजिए वैसे ही। ठीक है, सम स्क्रीन निकनेम्स आर ब्लैंक, कुछ दिख नहीं रहा। That is also a just for a minute for you. What is the name of this web browser? प्रीति चटर्जी, माइक्रोसॉफ्ट इज गुड। ये जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम का भी एक क्वेश्चन था और आता है कभी कभी। ठीक है, नया वर्जन में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है इसका, विंडोज़ सॉरी इंटरनेट एक्सप्लोरर के बाद लास्ट वर्जन के बाद ये माइक्रोसॉफ्ट एज का है, राइट। Next simple thing is don't post your personal information or pictures of yourself on the internet. This may be used by online predators against you. Okay, already we have seen or we have already discussed about these things. So don't give your real identity to anyone to meet online. This includes your real name, address, school information, email ID, password and bank account information. ठीक है, अगर आपका बैंक अकाउंट से कहीं पर से OTP कॉल आता है कि आपको ये प्राइज़ मिलेगा या तो फिर आपका KYC कराना है, क्या कराना है, इस तरह से तो अलर्ट तो बैंक खुद ही कर रही है कि नेवर शेयर योर OTP और वट एवर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, सो अगर आपका अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है तो वो हमारे चलते निकाल दिया जाता है, आपके चलते निकाला जाता है। ऐसा तो नहीं है कि उसको आपको मोबाइल में OTP भी अपने आप पता चल जा रहा है। ठीक है, सो रीज़न क्या है कि बी स्मार्ट इन द इंटरनेट, बी एक्टिव इन द इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट, डोंट अलाउ अदर टू हरास यू और पुट यू इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन व्हेन यूजिंग इंस्टेंट मैसेजिंग और व्हाइल इन ए चैट रूम। साइबर बाइंग इज रॉन्ग। ओके, इस तरह का मैसेज नहीं करना चाहिए, किसी को हरासमेंट या रेगुलर उसको कुछ मॉनिटर करना, बार बार हाई हाई वट एवर, सो डोंट यूज़ लाइक दैट। दिस पिक्चर ऑल्सो डिपिक्ट what we have discussed. Don't keep your personal information safe and don't share your top secret information, full name, photos, mobile number, address, school name, password. Why? Because cyber crips can use this information to find you. Don't fill out any survey, membership or application forms asking for your personal information from an unsecured site. जहाँ पर HTTPS साइट नहीं लगा हुआ है वहाँ से तो ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं करनी है, या तो फिर कुछ ऐसा सर्वे या मेंबरशिप या तो फिर कुछ इंफॉर्मेशन जो कि हम लोग को नहीं देना है अनसिक्योर साइट से। Don't open or reply or download attachment from spam or unknown senders. These may contain viruses or other threats that can harm your computer. ठीक है, हम लोग स्पाम मैसेजेस या तो फिर उस तरह से स्पाम इसी तरह से क्यों बनाया गया, स्पाम मेल बनाने का क्या रीज़न, स्पाम फोल्डर और लेबल्स, बिकॉज क्या है कि उसमें आपका अननोन सेंडर से आया हुआ मैसेज को कैटेगराइज किया है या वो ऐसा कंटेंट जिसमें आपका
वो हार्मफुल हो या तो फिर आपका वायरस हो सकता है। दैट्स वाई ईमेल प्रोवाइडर जैसे कि जीमेल या तो फिर रेडिफ मेल या तो फिर याहू मेल कोई भी स्पैम फोल्डर बनाया गया, ऑटोमेटिक वो कैटेगराइज्ड होके मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यार यूज्ड इन दिस स्पैम मेल। ओके, सो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है जिससे वो ऑटोमेटिक फाइंड आउट करता है कि क्या है स्पैम मेल, उसमें वो ऑटोमेटिक ये स्पैम हो सकता है, इस मेल को इस फोल्डर में डालो। ओके, सो इस तरह का मेल या को हम लोग को अटैचमेंट को डाउनलोड नहीं करना चाहिए या कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली व्हाट डू पार्टिसिपेट डू प्रैक्टिस ऑनेस्टली एंड डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। ओके, कुछ छुपाना नहीं है, कुछ अगर वैसा होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हम दे चुके हैं तो बता दीजिए सर को, या कुछ ऐसा कुछ उधर से आता है तो उसको भी बता सकते हैं। कुछ बी ऑनेस्ट, दैट इज़ ऑनेस्टी इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर while using internet, not only while using internet, in your whole life honesty is an important factor. So just a question for you, what is the full form of DNS? You can chat, you can give the answer in your chat box. आप मैसेज यूज़ कर रहे हो, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल में तो टाइपिंग स्पीड आजकल शायद कंप्यूटर के कीबोर्ड से कुछ ज़्यादा ही होती है मुझे लग रहा है, तो जल्दी से टाइप हो जाना चाहिए। फुल फॉर्म ऑफ DNS, चलिए मैं ही टाइप कर दूं क्या? राजकिशोर प्रजापति डोमेन नेम सिस्टम। ओके, सो बहुत सारे फेसबुक यूज़र्स भी हैं, तो अननेसेसरी वाई यूज़ फेसबुक। कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है या तो फिर कुछ बुक्स है जो मैंने कलेक्ट किया है, इससे आप क्या कर सकते हो कि नेटवर्क सिक्योरिटी और इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में कुछ दिया हुआ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इम्पोर्टेंट बुक्स एंड कंटेंट्स आर देयर। सो ये सब लिंक को क्लिक करके आप कर सकते हो। मैं आपको ये PPT को और PDF फाइल को शेयर कर दूंगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि आप इसको देख सकते हो, जैसे कि मैं एक लिंक को क्लिक करता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये साइट में आपको दिखाया जाएगा कि 20 इंटरनेट सेफ्टी टिप्स वगैरह है, तो कुछ इंटरनेट सेफ्टी टिप्स एंड कुछ जो नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में कुछ है, ठीक है। तो वो बुक्स है, ये सब बुक्स को आप पढ़ सकते हो या यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ दिया हुआ है, तो ये सब में कुछ बहुत सारा इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, और भी सारा चीज़ है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। ये एक कंप्यूटर नेटवर्किंग का बुक है, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड हार्डवेयर, नेटवर्क लेयर, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, सारे चीज़ से लेकर के नेटवर्क सिक्योरिटी तक का ये बुक है। बहुत ही अच्छी बुक है, ये ओपन होगा तो दिखा दूँगा, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ सकते हो। तो ये सारे चीज़ों के लिए, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 8, क्लास 10, क्लास 12, कंप्यूटर साइंस, BCA, BTech और इवन की मास्टर्स डिग्री भी इसे फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो ये कुछ रेफरेंसेस है, सो ये रेफरेंसेस आपको हेल्प करेगी, ठीक है।
Now it's time for you, just think yourself successful. Okay, so to test yourself, just give your 5 minute, type the messages, the simple questions are there, and टेस्ट योर सेल्फ. सो 5 मिनट दीजिए अपने आप को, ठीक है. और इसमें जस्ट 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए. नाउ इट्स टाइम टू यू. ओके, गुड लक. So first question is that what is the full form of DHCP? Option number A is the dynamic host configure protocol. Option number B is the dynamic host configuration protocol. Option number C, dual host configuration protocol. Option D, dynamic host configuration process. So there are 4 options given, in which one is correct. So you can just type the message A, B, C or D. What do you think? What is the full form of DHCP? श्रुति नंदा ऑप्शन नंबर बी, राजकिशोर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अंशु कुमारी ऑप्शन नंबर बी. गुड 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 गुड. ऑप्शन नंबर सी, शुभम रॉय. ओके, ऑप्शन नंबर बी का ज़्यादातर आ रही है, ठीक है. ओके, चलिए देख लेते हैं. डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. गुड, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. बहुत कोई सही आंसर दिए हैं, ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं. ऑप्शन नंबर 2, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंटरनेट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इंटरनेट तो हम लोग सारे को यूज़ करते हैं, बच्चे, बट पता नहीं है कि कौन फाउंडर है. ऑप्शन नंबर ए, बॉब खान. ऑप्शन नंबर बी, विंसर्ट. ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी. ऑप्शन नंबर डी, टिम बर्नर्स-ली. ठीक है. हु वाज द फाउंडर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का फाउंडर कौन थे? ठीक है, बताइए. ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी. ऑप्शन नंबर डी, श्रुति नंदा, ठीक है. ऑप्शन नंबर सी, प्रीति चटर्जी, जुलन कृष्णा मंडल. ऑप्शन नंबर सी, अंशु कुमारी, टीकी कुमारी. ऑप्शन नंबर सी, ठीक है. चलिए, इंटरनेट में सर्च करके ही कोई बता रहे हैं, लग रहा है. गुड, इसी बहाने कुछ पता तो चल रहा है. ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, वॉफखान एंड विंसर्ट. गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर. Next question is, what is the full form of HTTP? That is very easy question. Okay, even class 6, class 7 is standard student in computer science know what is the full form. Just 2 seconds, 3 seconds are left for this answer. B. Good. Hypertext transfer protocol. Question number 4. To join the internet, the computer has to be connected to a. Option number A, Internet Architecture Board. Option number B, Internet Society. Option number C, Internet Service Provider. Option number D, different computers. इंटरनेट ज्वाइन होने के लिए क्या होना ज़रूरी है? ए, बी, सी और डी. इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट आर्किटेक्चर. सी. यस, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. गुड. ISP तो बता दिए. कोई एक ISP का नाम बताइए. ऑप्शन नहीं है, ओरल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. Which of the following is not an encryption algorithm?
इसमें से कौन सा एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज RSA, सेकेंड ऑप्शन इज DES, थर्ड ऑप्शन इज PPP एंड ऑप्शन नंबर 4 इज MD5। कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम नहीं है? ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन नंबर F पता नहीं है। सी 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 गुड गुड सी। इस क्वेश्चन का आंसर सी ही होगा, क्योंकि RSA, DES एंड MD5 आर द इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। ठीक है, ये सब है, बट PPP जो है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, ये इंक्रिप्शन एल्गोरिदम नहीं है। MD5 मैसेज डाइजेस्ट 5 ये भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। DES डेटा इंक्रिप्शन सिस्टम या इस तरह से कुछ है। RSA भी जो है तीन के नाम पे है, तो ये भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। ओके, सो PPP इज द नॉट एन इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। गुड। Next next is thank you for attending and joining this session, all of you, and be safe and best of luck for your future. And any question, so please discuss and you can query me. Thank you all of you. Thank you sir, thank you all of you. सो आई थिंक इसमें कुछ क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए, मतलब वैसे ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा ये टॉपिक तो ये प्रोग्रामिंग का नहीं है, नहीं ये प्रोग्रामिंग का है। C++, जावा और व्हाट एवर वेब डेवलपमेंट, जावा स्क्रिप्ट और व्हाट एवर यू लर्न इन कंप्यूटर साइंस। ओके 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 ओके, जस्ट ए मिनट। Who is the mother ISP provider in India? वाह, ये तो मुझे भी नहीं पता है भाई, मुझे भी नेट करना, गूगल करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, गुड। चलो इसी बहाने कुछ क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, इसी बहाने हम लोग देख लेते हैं। चलिए, यहाँ से कॉपी पेस्ट भी अलाउ है कि नहीं भाई? पेस्ट। देखिए, लिस्ट ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंडिया इन विकीपीडिया। ठीक है, ये मुझे मिल गया है डेटा। गुड। आप लोग को जितना भी सारा कोर्स है वो सारा कुछ कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो कोर्स है ये आपका 8th नंबर कोर्स था, इंटरनेट डज एंड डजंट। आफ्टर you can join the basic of digital image processing and its application। ये कोर्स आपका 16 एंड 17 तारीख को है। ठीक है, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग ये भी कोर्स है। आपको सारे कोर्स इंटरेस्टिंग है, तो ये आपका कल एक मैडम लेंगी, मिस सुषमा कुमारी। ओके, सो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के बारे में आप लोग को पता रहेगा। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ AI। AI क्या है,
कितने कैटेगरी है, क्या है, सारी चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा। एंड इंट्रोडक्शन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन विथ पीएलसी एंड स्काडा के बारे में है 22 से 23 तारीख को बीच में। तो 23 को ये कोर्स ख़त्म होगी। ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स वी विल आपको क्या मिलेगा कि आपको एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, अगर चलिए ठीक है, और भी कुछ किसी को कुछ इस तरह का नेटवर्क सिक्योरिटी या नेटवर्क सेफ केयर के बारे में कुछ क्वेश्चन या उस तरह से कुछ है तो कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन IPv6 एंड IPv4? ओके, सो देखिए बहुत सारा प्रोटोकॉल्स हैं IPv4 और IPv6, बट अभी तक का जो है क्या है कि IPv4 ही यूज़ होता है, क्योंकि IPv4 में क्या है कि वो 32 बिट का होता है। ठीक है, और IPv6 क्या है कि वो 128 बिट का होता है। दैट इज़ IPv4 में अगर एक नेटवर्क में बहुत सारा क्लासेस होती है, ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई तक। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर आप एक सिंगल पर्सनल लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं तो अगर क्लास सी का एड्रेस सिर्फ यूज़ करते हैं तो 2 to the power 32 कंप्यूटर्स नंबर ऑफ नोड्स यू कैन यूज़। ओके, जिसमें से एक नेटवर्क एड्रेस और एक होस्ट एड्रेस को माइनस कर दीजिए। वहीं अगर IPv6 का यूज़ कर सकते हैं तो वो कभी कभी भी वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका टोटल नंबर ऑफ जो है, अगर क्लास में डिवीज़न उसका तो इस तरह से नहीं है, अगर करें तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो और भी डिटेल में अगर जानना है तो आप उसमें जो लिंक प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, उसमें आपको एक बुक में मिल जाएगा कि V4 V6 में क्या क्या है। तो उसमें बहुत सारा और भी प्रोटोकॉल्स हैं, उसका पैकेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फ्रेम रिले है, और भी बहुत सारा उसमें कुछ होता है। ठीक है, तो वो सब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है बिटवीन द IPv4 एंड IPv6। ओके, ओके, और किसी को कुछ सवाल है तो कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? नॉट ओनली दिस टॉपिक, और भी आप लोगों ने जो पढ़ रहे हैं या जो भी कोर्स कर रहे हैं या कुछ उस तरह से इश्यू अगर मैं सॉल्व कर सकूँ। ओके, सो आप लोग प्रोग्रामिंग भी आप लोग को आती है, ठीक है, प्रोग्रामिंग भी कर रहे हो या कंप्यूटर से या अदर चीज़ से। ठीक है, उससे अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो, कुछ क्वेरीज है तो कर सकते हो। अदरवाइज़ फिर 2-3 मिनट में ये क्लास ओवर करते हैं आज का। ओके, ये वाला बता दीजिए, मदर नहीं होगा, मतलब ये फर्स्ट जो है कौन प्रोवाइड किया था इंडिया में? BSNL। नहीं, BSNL। अच्छा, BSNL क्या फर्स्ट? फर्स्ट ऐसे प्रोवाइड किया था इंडिया में। अच्छा अच्छा,
Okay, so I think the class is over today and next topic आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, सारे कोर्स को ज़रूर अटेंड कीजिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही डेडिकेटेड दिख रहे हैं